All the by elements? All the elements? third. Not necessarily. You write some or all the elements of the set. Suppose you have a set on natural numbers. तो would you write all the elements? तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, सारे एलिमेंट लिख नहीं पाओगे. So we write some or all elements of the sets, right? Okay, sir. So that was roster form. What about set builder form? कौन बताएगा? How would you define? Hmm? Yeah, in the set builder form, we write some defining property of the sets, right? जैसे कि यहाँ पे the same set you can write x such that x is a natural number. So this is how we convert, roster form to we can convert to natural, the set builder form and set builder to roster form also. For example, if I write another set A, which is say A, E, I, O, U. So what will be its set builder form? All the vowels, है ना? So it will be X such that X is a vowel. If I write another set C, which is X such that X plus 1 is equal to 0, X belongs to natural number. Can you write it in the roster form? What will be the roster form for this? X plus 1 equal to 0. Lavanya, did you go through the last class? Yes, sir. All right. So if I solve this equation, I'll get x equal to minus 1, which is not a natural number. That means the roster form would be a null set like this or like this. If you write phi inside the braces, it will not be a null set. So we need to write the null set, मतलब empty set हो गया. So this is how we can convert one form to another. अब हम आगे बढ़ते हैं. अथर्व, last time का कोई doubt तो नहीं है तुम्हारा? No, sir. So far, All nothing. right. Next. Cardinal number. Cardinal number of a set. Yes. लिखो. Cardinal number of a set. Cardinal number of a set is cardinal number of a set is number of distinct elements, number of distinct elements in a set, number of distinct elements in the set. You can underline distinct, number of distinct element in the set. तो जैसे मैंने बताया था, किसी भी सेट में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता. सपोज आई हैव सेट एक्स विच इज ए ई आई ए ई ओ, and I ask you what is cardinal number of the set. This is how you read it, okay? N of x का मतलब cardinal number of the set x. तो इस सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? 4, 5, 6, 4, बिकॉज ए और आई रिपीट हो रहे हैं, है ना? ए ई रिपीट हो रहे हैं. So the distinct would be A E I O. So it will be 4. So that's how you find cardinal number of a set, number of distinct elements of a set. If I ask you what is cardinal number of set C, कितने एलिमेंट्स हैं? नथिंग को मैथ्स में क्या बोलते हैं? यस. तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी वुड बी 0. ठीक है. तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट. इट इज रिप्रेजेंट बाय एन ऑफ व्हाटएवर द सेट सिंबल इज. अब आई राइट सम सेट्स ऑन द बोर्ड और एंड में तुम्हें सबका मुझे कार्डिनल नंबर बताना है. ठीक है. आई एम राइटिंग सम सेट्स ऑन द बोर्ड. खुद से सॉल्व करोगे तुम.
there's no हरी, आराम से करोगे, ठीक है। इसको मैं आर कर देता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सारे एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इंटीजर्स को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट, ओके। हम्म। वो नेचुरल नंबर भी है, वो रियल नंबर है, वो प्लस है, वो माइनस है। In whatever sets I have written on the boards, you need to write cardinal number of each set, right? Aditya, every Tuesday will have a class at 5, 5 to 6:30 for the entire, year. This is fixed now. No changes. Which one? T is such that x mod x plus 2 equal to 0, x belongs to I. 1x सच दैट है, तुम भूल गई सारा। इसको तुमने सबको वन पर रीड किया है। एक्स सच दैट एक्स, कौन सा वाला? ये 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 मॉडुलस। ऐसा मत करो। जिस रायना, तुमने क्लास देख ली थी लास्ट वाली? नो सर, अभी नहीं देखी। ठीक है। तो वो स्कूल में सेट्स वैसे कर लिया सॉल्व है? कर लिया और ट्यूशन में भी हो गया, तो मैं ठीक थोड़ा। है, तो अब करो, फटाफट आंसर करो सारा, फिर सारा लिखो।
हम्म क्यों नहीं कर सकते? इसका तुम कैसे, इसका कैसे करोगे इस, और क्या इन्फिनिट लिख दोगे? अरे माइनस थोड़ी होता, काउंटिंग तो इन्फिनिटी होगा ना, इनफाइनाइट सेट। यस, या वी कैन से दैट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एन। कर लिया सब लोगों ने, सारा हो चुका है, करें आंसर अब। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। यू कांट लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, सो विल बी इनफाइनाइट सेट। जब किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू कांट लिस्ट डाउन ऑल ऑफ देम, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है? सिया ने क्या सोचा, फाइनाइट सेट है वो, चार लिख दिया तुमने, डॉट 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 इन्फिनिट तक जा रहा है। चलो ठीक है, एन ऑफ ए का कितना हुआ? 5। एन ऑफ बी भी 5 हुआ, है ना? एक्स इज अ वोवेल। एन ऑफ सी कितना हुआ? तो जीरो कर ही लिया था हमने। नेक्स्ट बताओ, एन ऑफ वाई, इसको जब तुमने सॉल्व किया, इसके इसके क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 and 3 आ रहे हैं। मिल टर्म स्प्लिट, 3x and -2x, 2 and 3 आएंगे। सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर? एन ऑफ वाई 2। व्हाट अबाउट पी? नंबर ऑफ लेटर्स ए इन द वर्ड अलाहाबाद, ए कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, लेकिन repetition is meaningless. That means the answer would be 1. It's a singleton. If the cardinal number of a set is 1, it is called singleton. What about Q? जैसे ना बताना Q का कितना होगा? दिव्या तुम बताओ, Q वाले सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? एन क्यू का है 1। तुमने फैक्टराइज किया सब लोगों ने इसको? क्या रहा है यस। फैक्टर्स करके? इफ यू फैक्टराइज दिस, तो Q के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? माइनस -1। -1 and 6 आ रहा है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर नहीं है। सो -1 विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो द कार्डिनल नंबर सेट क्यू वुड बी, इट इज ऑल्सो सिंगलटन। अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर होता है नेचुरल नंबर की जगह, देन इन दैट केस इट वुड हैव कार्डिनल नंबर एज 2। कोई डाउट है तो पूछ लेना, आदित्य, लावण्या। व्हाट अबाउट सेट एक्स? अगेन 5? नहीं, ये तो मैंने कर लिया 4, रिपीटिशन हो रहा है इसमें ना। और व्हाट अबाउट आर? 5. So n of r is also 5. What about n of s? वो infinity। Yes, यहाँ पे ऐसे सेट ऑफ इंटेजर, हैड इट बीन नेचुरल नंबर, तो इसका 5 होता, 1 2 4 5। हैड इट बीन होल नंबर तो उसका 6, बिकॉज 0 1 2 3 4 5 तक हो जाता, लेकिन ये इंटेजर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, डॉट 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 -3 -2 -1 0 and 1 2 3 4 5, so it is infinite set. Its cardinal number is not defined. What about t? Modulus s is always a positive number, right? तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का सम दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ जीरो हो ही नहीं सकता। दैट मीन दिस काइंड ऑफ सेट इज नॉट पॉसिबल ओनली। इसका मतलब मैथमेटिकली इट्स कार्डिनल नंबर वुड बी 0। यू का क्या होगा? कोई ऐसा होल नंबर है, बिकॉज जब उसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर को -4 आएगा, इट विल गिव यू इमेजिनरी नंबर। सो सेट यू का भी कार्डिनल नंबर कितना होगा? 0 होगा। व्हाट अबाउट एस? अच्छा, एस तो हमने कर ही लिया था, राइट? सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन फाइनाइट, और सॉरी, हाउ टू फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट लिखो,
equivalent and equal sets. Equivalent and equal sets. So what are equivalent sets? लिखो, two or more sets. Two or more sets are said to be. Two or more sets are said to be two or more sets are said to be equivalent if they have same cardinal number. Two or more sets are said to be equivalent if they have same cardinal number. बताओ अब, क्वेश्चन फॉर यू इज, बोर्ड पे जितने भी मैंने सेट्स लिखे हैं उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है विच सेट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है? उनका नाम लिख लो, कर लो क्वेश्चन। राइट ऑल द ग्रुप्स ऑफ द सेट्स विच आर, हाथ से लिखना होता है, और नहीं नहीं, टी यू आर इक्विवेलेंट सेट्स, दैट वेज दे आर नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट है वो। राइट ऑल द ग्रुप्स ऑफ सेट विच आर इक्विवेलेंट, ठीक है? आराम से, देयर इज नो हरी, गलती नहीं होनी चाहिए। जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं उनका वो बना लो अलग अलग, और उनका कार्डिनल नंबर भी लिख लेना, ठीक है? तुम्हारा स्कूल कौन सा है? Write all the sets which have same cardinal number, therefore which are equivalent. लिख लिए सारे? अक्षिता बताओ, एक एग्जांपल दो, एक 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 आंसर करो, कौन से हैं? एन, एन एस, इक्वल तुमने बात ही नहीं की, इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। नाउ टेल मी वन थिंग दिव्या, एन एन एस आर द इक्विवेलेंट सेट्स? and no sir. दोनों का कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट है ना? Then we are taking आदित्य, व्हाट डू यू yes. से? Can you repeat the question? एन एन एस आर द इक्विवेलेंट सेट्स और नॉट? The N, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसका इन्फिनिटी था, इसका भी इन्फिनिटी है ना? एन एस ये भी that's इन्फिनिटी है। the equivalent sets. हाउ मेनी पीपल से यस टू दिस, दे आर इक्विवेलेंट? Yes sir. हाँ, इक्विवेलेंट है या नहीं है? डू यू एग्री? व्हाट डू यू से? दिस इज नॉट डिसाइडिंग, यू से यस, कोई नो कोई बोलने वाला है? दे आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? व्हाई? बिकॉज इन्फिनिटी इज समथिंग विच नॉट डिफाइंड। तो अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं है तो वो इक्वल कैसे हो सकता है? लिख लो नोट करके साइड में, इनफाइनाइट सेट्स आर नेवर इक्विवेलेंट। Infinite sets are never equivalent. Infinite sets are never equivalent as their cardinal number is not defined. As their cardinal number is not defined. बात समझ में आ गई? तो इसको तो हटा देते हैं। फीलिंग बैड फॉर एनएनएस, अक्षिता? ऑल राइट, नेक्स्ट तुम बताओ।
उनका कार्डिनल नंबर भी बताओ। सी टी एन यू, इन सब का कार्डिनल नंबर 0 आ रहा है। दे आर ऑल नल सेट्स, एग्री? 0 तो डिफाइंड है, सो दे आर नल सेट। सेकंड तुम बताओ, विच अदर सेट्स आर इक्विवेलेंट? पी एंड क्यू, दोनों में कार्डिनल नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। सेकंड सेट ऑफ सेट्स इज पी एंड क्यू and these have cardinal number as 1. Perfect. थर्ड कौन बता रहा है? और भी होना चाहिए, कोशिश करो, मिल जाना चाहिए। A and B. Yes, A and B, their cardinal number is 5. A, B and R. चलो कोई बात, ठीक है। तो A और R को तो तभी तो कार्ड हो गया ना वो इक्विवेलेंट। तो यू कांट से दे आर नॉट इक्विवेलेंट। सो A, B and R, परफेक्ट। और कुछ? So T and U. P and U. So T. T, T था, वो हो चुका है, ये यहाँ हो गया ना, Oh. ठीक है। सो नाउ इक्विवेलेंट सेट बिल्कुल पक्का हो गया। So if sets have same cardinal number, then they are equivalent sets. Next लिखो equal sets. Equal sets. Two or more sets. Two or more sets are said to be equal. Two or more sets are said to be equal if they have same cardinal number. If they have same cardinal number and same elements, same cardinal number and same elements। तो कार्डिनल नंबर भी सेम होना मांगता है और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। हाँ, तो अब मुझे बताओ कौन से सेट्स इन गिवन सेट्स में से इक्वल हैं? A और B है। ए और, ठीक है, और बताओ। ए और बी हो गया, और अच्छा तो सी नहीं, वो तो सेम ही था, सी और सी तो सेम सेट है, बट इट्स नल नल सेट ना, तो नल सेट ऑलवेज इक्वल। एक और भी नल सेट और होगा ना, नल सेट और भी था क्या? यू, यस। तो यू कैन से सी टी यू आर ऑल्सो इक्वल सेट्स, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बता रहा हूं मैं तुम्हें, इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। False. ऑल लिख लो फिर, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। इज वाइस वर्सा ट्रू? बट नॉट वाइस वर्सा, लिख लो, बट नॉट वाइस वर्सा। तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट लिखो फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सबसे पहले फाइनाइट सेट, those sets whose cardinal number, those sets whose cardinal number is finite, those sets whose cardinal number is finite are called finite sets। तो जो भी मैंने बोर्ड पे सेट्स लिखे हैं, इनमें से कौन कौन से सेट्स फाइनाइट हैं? तो वो इंफिनिटी वाले सेट से एस थोड़ी है, एस मेरे ख्याल से एस और एन को छोड़ के सारे फाइनाइट है। एस तो इनफाइनाइट सेट है यार, अभी तो किया था, इतनी जोर से लिखा हुआ है बोर्ड पे। एस और एन बोथ आर इनफाइनाइट सेट। तो नाउ यू कैन डिफाइन इनफाइनाइट सेट आल्सो। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? दो सेट हुज कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी।
लिख लो, those sets whose cardinal number is not defined or infinity. Those sets whose cardinal number is not defined or infinity. ठीक है, तो अब हमने इक्वलेंट सेट कर लिया, कार्डिनल नंबर कर लिया, एंड वी आल्सो डन फाइनाइट इनफाइनाइट सेट. अब लेट्स गो टू द असाइनमेंट. ये क्वेश्चंस करते हैं. हम्म. कब? फिजिक्स का तो अच्छा, अभी कमिंग नेक्स्ट वीक ना, नॉट दिस कमिंग. हाँ, तो तब तक तो वो एप्लीकेशन तो करना है फिजिक्स में, हमें क्या करना है, बाकी तो कर ही लिया हमने. सारा रिवीजन कर लिया तुमने? कैसा हुआ? कम है? क्यों नहीं कर पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा, सरप्राइज था. नाउ विल आंसर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करो. असाइनमेंट का क्वेश्चन 5, 6 एंड 7. मैंने ग्रुप में असाइनमेंट डाल दिया था ना. ओके. क्वेश्चन 5, 6 एंड 7. जिसमें डाउट है मेरे से पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन 5 हो गया सभी का, लावण्या? डन. सर मैंने पहले 14 क्वेश्चंस पहले ही कर लिए थे क्योंकि मैं अच्छा, क्लास में नहीं थी। चलो गुड. दिव्या, 5th इज डन. यस सर, सिक्स्थ कर रही हूँ. ओके. आदित्य? वो बस एंड पे हूँ.
आंसर चेक कर लेना, ठीक है? तुम जल्दबाजी में गलतियां करते हो। जसरीना, हो गए? फिफ्थ हो गया। ऑलराइट। अथर्व, Sir, starting the sixth one. करो। नव्या कर लिया तुमने? फिफ्थ बोर्ड पे कर दो, चलो। नहीं, कल करना। चलो, अभी तो करोगी। हम्म, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अगर फाइनाइट सेट है ना, यू कैन राइट द सेट ऑल्सो। इफ द सेट इज फाइनाइट यू कैन राइट द एलिमेंट्स ऑल्सो। अच्छा, क्यों? सेकंड क्या है? सेकंड इज 1 to 5 ना। 1 to 5 तो विल बी इनफाइनाइट। Now, in case of real number, we can't list down the element because between two closest real numbers, there'll be infinite real numbers. Third में कुछ misprint था, but I think it's more than one and less than 5 1. It'll be finite set. Third तो finite था ना? और क्या? Between 1 and 500 देखो। हाँ, तो थर्ड वाला finite। Third is finite because if I ask you what is the cardinal number, सब लोग एक काम करो, जो भी फाइनाइट सेट्स है ना उन सब के कार्डिनल नंबर भी लिखो। इस क्वेश्चन नंबर 5 में whichever sets are finite also write the cardinal number। नवे, इसके बाद तुम एक काम करना, असाइनमेंट लाओ और फिर देखो कौन जितने भी सेट्स फाइनाइट है ना उनके कार्डिनल नंबर भी लिखो आंसर अभी। थर्ड वाला इनफाइनाइट क्यों होगा? बिटवीन 1 and 500। वो 1x नहीं है, वो 1 मिस हो गया, मिस प्रिंट है थोड़ा सा। इट्स 1 is 1 less than x less than 500। this slide misprint। So whichever sets are finite, write the। हाँ, बिकॉज फिफ्थ सिक्स मैं राइटिंग तो ठीक है, इस पे आ नहीं रही ना। ठीक। सो फर्स्ट का कार्डिनल नंबर क्या है? अथर्व, पहले वाले का कार्डिनल नंबर बताओ, फिफ्थ का फर्स्ट। Sir, I started the seventh one. I have not found the अरे कोई cardinal बात नहीं, number. फर्स्ट का फिफ्थ को कर लिया तुमने। हाँ जी sir. फिफ्थ का फर्स्ट का कितना है कार्डिनल नंबर? So cardinal number five. 5 है? Oh, three. पक्का सोच लो, पक्का डिसाइड कर लो, Yes. मम्मी मम्मी से पूछ लो। Three. थ्री Three. है? Three. Yes sir. नव्या तो कुछ और लिख रही है। थ्री लिखा है। थर्ड का क्या है? लावण्या, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट? क्वेश्चन नंबर 3। It is 1 less than x less than 500। So, 500. हाँ, what is the cardinal number of the set in the third part of the question? कितने 490. एलिमेंट्स हैं? 498 है ना? Because 1 is not included, 500 is not हाँ, included, so 2 to 499। 490. 498, right? लिख दो आंसर 498 उसका। 490, हाँ, because 1 will not be included, 500 will not be included, so answer would be this। इसके ये क्या सेट थोड़ी लिखना था, कार्डिनल नंबर लिखना है फोर्थ का। फोर्थ सेट का कार्डिनल नंबर कौन बता रहा है? जसरीना, फोर्थ का बताओ कार्डिनल नंबर। So, हम्म, फिफ्थ 2 plus minus 1 होगा. 2 हो गया, ठीक है। So it's just Rhino. जसराइना, Just, जसराइना। yes. तुमने इतना डिफिकल्ट नाम रखा ना अपना। So I have Rhino clarification. जस बोल, मैं जस बोलूंगा, ये ठीक है? इतना चलेगा? जस या रायना? या Rhino's fine. ठीक है, रायना। जस इज फाइन ना?
No, sir. फिर रायना इज फाइन. Yeah. ऑलराइट. कितने ज्यादा तो नोटबुक से थोड़ी बाहर निकल जाएगा, 1000 होगा. अच्छा, दैट्स ऑल राइट, ऑल राइट. नंबर ऑफ सोल्जर इन इंडियन आर्मी. ऑल राइट, ठीक है. लास्ट में क्या है? ठीक है, राइट. ओके फाइन. तो दिस इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो अब. Last won't be infinite. लास्ट में क्या था बताना मुझे. लास्ट All क्वेश्चन क्या है? persons on the set. हाँ, it won't be infinite, is it? We know the counting. Counting may be difficult, but we know the people are finite. ठीक है. The number of animals, number of birds, number of human beings on Earth, they're all finite. Even the number of stars are countable, so they're little finite. Yes, galaxies are finite. हाँ, 6 7 कर लो, खत्म. 6 हो गया. कर लिया, बोर्ड पे कर दो पहले. तुम क्या कर रहे हो? 6 हो गया. 7. ठीक है, 7 कर लो फिर. इसको हटा दो, नेक्स्ट पे कर लो ना. हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ठीक है, जाने दो. सिक्स में हमें ये बताना है विच आर इक्वल सेट्स. एंड इफ द सेट्स आर इक्वल ऑल्सो राइट द सेट. यू राइटिंग ए बी एंड ई आर इक्वल, तो ए बी ई क्या है वो भी लिखो सामने. ऑल्सो राइट व्हाट इज ए बी एंड ई. हम्म. ठीक है. भाई इक्वल में तो वो भी होता है ना, एलिमेंट्स भी सेम होते हैं. दिव्या, सारे हो गए? यस सर, सेवेंथ के बी पार्ट पे हूँ। ऑलराइट. इन दोनों का बताना है. एंड हाँ, सेवेंथ में ए पार्ट में ना, फर्स्ट कंसिडर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, are they equal or not, and then consider the third part. Third part may have been given two sets, are they equal or not, that ways. सिया का तुम कर रही हो सेवेंथ बोर्ड पे? यू डन? क्यों? इसमें फर्स्ट पार्ट में यू हैव सेट ए एज दिस, सेट बी एज दिस, आर दे इक्वल और नॉट? दे आर नॉट इक्वल, सिंपल. So first part, if you see, set A is basically 2 and 3 ना. Whereas set B को जब तुम सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज करके क्या आ रहा है? -2 -3. So they are not equal sets, but they are equivalent. So they are not equal, but they are equivalent because they are the same cardinal number as 2. Equal नहीं है. सेकेंड पार्ट में क्या था इसका? फॉलो में क्या होगा बताओ? लेटर्स कौन कौन से हैं डिस्टिंक्ट? एफ, ओ, यही है बस. एंड सेकंड सेट क्या है? वुल्फ. उसमें भी सेम आएगा. तो ये बहुत जोर से इक्वल सेट्स हैं. द एलिमेंट्स आर द सेम एंड cardinal number also same, so they are equal sets. That's it, हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, बी पार्ट भी कर लो फिर.
This chapter is the easiest chapter of the entire book. So in the B part, they've been given 4 sets. Can you tell me what is cardinal and what is the set A? Set A क्या होगा? So zero. 0. I mean, element will be 0. The cardinal number is 0. Element. That is, it is a null set. Set B. Zero element है. तो अगर zero element है 5 कैसे होगा ये? It won't be 5. In that case, it's not 5. फिर तो इसका जो cardinal number है वो 1 हो गया ना? It's a singleton. It's not a null set then. What about set B? So that is null set. Hmm? Null set. Null set. Show me assignment. Set B is x greater than 15 and x less than 5. A number which is more than 15 or 5 से छोटा ऐसे तो possible ही नहीं है. We won't say 0. It is a null set. Yes, इसका cardinal number 0 होगा. अगर 0 is inside a set, it doesn't mean that it's a null set. What about set C? 5 would be the element and then 1 as Hmm. the cardinal. X is equal to 5. Set C is basically a set containing exactly one element, which is 5. That means n of C is 1, a singleton. What about set D? 5 and minus 5. If you take root of this, you'll get two values. X is equal to plus minus 5. So this is minus 5 and 5. Its cardinal number is 2. फिर और कौन सा सेट है? E भी है. And E is Minus 3 would be the element. an integral positive root of the equation. अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है तुम्हें? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 15 is equal to 0. You can factorize this. X square minus 7x plus 5x. सर माइनस one 5x प्लस 3x नहीं होगा? हाँ हाँ राइट, गलत हो गए. So this would be 15 है ना ये? तो minus 5x plus 3x. So when you solve minus 3 and 5, but he has put a restriction over here, integral positive root. So only one positive root is there, which is 5. So which sets are equivalent? सर C and E. A, C, and E. But they're saying find pairs of equal sets. So equal sets are C and E, and if you are finding equivalent sets, then A, C and E. A और C equal set कैसे हो गया? Equal set का मतलब है No, element sir. has to be the same. Equal sets are C and E. हाँ, A and C are not equal sets. C and E, right? Because elements are the same. तो C and E are equal sets. बाकी तो कोई भी नहीं है. ठीक है? आगे बढ़े. अथर्व, क्लियर ही बात सारी? Yes, sir. Right. Suppose I write a set A which is 1, 2, 3, and I write few more sets. Suppose set B is there, which contains only one element. Set B is there, C is there, which has two elements, 2 and 3. Set D is there, which is 1, 4. Set E is there, which is
1, 2, 3. Set F is there, which is 1, 5, and set G is there, which is a null set. Now, with respect to A, let's figure out each set में क्या हो रहा है. Now, if you look at the set B basically contains one element. We can say that 1 belongs to set B. This epsilon का मतलब belongs to. It means belongs to. और अगर तुम इसको क्रॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? Right. It does not belong to हो जाएगा. तो B belongs to, 1 belongs to B, and 1 also belongs to, and 1 also belongs to set A. So can I say that B is contained in set A? है ना? B के सारे एलिमेंट सेट A में भी हैं. Perfect. What about C? 2 and 3 both belongs to B, and also 2 and 3 both belongs to A. Again, we can say that C is contained in A, है ना? Set C A के अंदर है. What about D? D में 4 belongs to set D, but 4 does not belong to set A. So I can say that set D is not contained in set A. What about this? Same, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E is also contained in A. What about F? 5 belongs to F, but 5 does not belong to A. So F is not contained in A. Null set तो बेचारा खाली set है, empty set है, void set है. So it is there in the every set. So now we are defining what is called subset. So I can say that B is subset of A, and this is how we write it. C is subset of A. D is not contained in A, so D is not subset of A. This is symbol for subset. So this imply is subset of. So whenever you come across this, it would mean is subset of. अगर ये क्रॉस हो गया तो yes, is not a subset. अभी कर रहे हैं. हाँ, सुपरसेट इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा. E is also subset of A. F is not subset of A. And a null set is always subset of all the sets. तो किसमें? वन, हाँ, all elements should be there. ठीक है? Now I'll define what is subset. If A is subset of B, it would imply each and every element, each and every element of, हमने चलो ठीक है, ऑफ सेट बी लिख देता हूं मैं, it'll be easier, otherwise इससे कंफ्यूजन होगा. बी सबसेट ऑफ ए, each and every element of set B is there in set A. That is the meaning of subset. अगर B A का सबसेट तो B के सारे एलिमेंट A को बिलोंग करेंगे. एंड मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हो? इसको हम ऐसे भी लिखेंगे. It also means if some random element X belongs to B, it implies X also belongs to A. That is the meaning of subset. उसमें contained होगा. लिख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे.
नव्या मोबाइल झोले में रखो अपना। उसको थोड़ा रेस्ट लेना दो मोबाइल को। नहीं, so B is contained in A, that means B is subset of A. And if B is subset of A, it would also imply that A is superset of B. That is, A contains B. इसका मतलब ये भी होगा। ए बी का सुपरसेट हो गया, मतलब वो बड़ा है उससे, वो उसको कंटेन कर रहा है। तो सुपरसेट में सिंबल को रिवर्स करके लिख दोगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फाइनल पॉइंट्स? फाइनल पॉइंट ये है कि नल सेट विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड अ सेट विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लिख लो, null set null set is always subset of every set. A null set is always subset of every set. And the second point is a set is always subset of itself. A set is always subset of itself. हालांकि वो इक्वल है बट वो सबसेट भी है। तो जब अगर मेरे को लिखना है कि ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब आई कैन राइट लाइक दिस, सबसेट के नीचे तुम इक्वल साइन लगा सकते हो, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए है ना। सो दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू राइट ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट? कैसे करोगे? वो कैसे आता है वो भी समझ लेते हैं। हालांकि दैट वी स्टडिंग इन बायनॉमियल एंड कॉम्बिनेशन परमुटेशन। सपोज सेट ए इज देयर व्हिच इज 1 2 3 and I would like to know how many subsets are there. किसी भी सेट के में सारे अगर सबसेट्स लिखने हैं तो what you do is you start with the set which has the least number of elements, which could be a null set. पहले 5 से शुरू करो, उसमें कुछ भी नहीं था, null set है। फिर all those subset which have exactly one elements, वो सारे सबसेट जिसमें exactly एक ही एलिमेंट है। फिर वो सारे सबसेट जिसमें exactly दो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 1 3 2 3, ठीक है। एंड देन द सेट इटसेल्फ 1 2 3। काउंट करो कितना आ रहा है, टोटल कितने हैं? 8, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग दैट किसी भी सेट के अंदर यू माइट हैव अनदर सेट एज एन एलिमेंट। जैसे कि इफ आई राइट सेट बी एज 1 comma a set containing 0, so what is the cardinal number of set b? Tell me, आदित्य, सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है? So 2. 1 and 2, 2 है ना। Yes. Can I say that 0 belongs to set B? Is it true or false? कौन बताएगा? लावण्या, 0 belongs to B. Is it true or false? Sir, false. क्या बात है दिव्या, तुम क्या बता रही हो? सही है ये? Sir, 0 set B का 0 part belongs to set B. It's true. is true. True, false. How many people say true? 1 2 3 4. Divya say 5. Just what do you say? False. False. Atharv, So true. true. Aditya, False. answer is false.
0 is not element of set B, but a set containing 0 is element of set B. ये ट्रू है, ठीक है, ये सरासर झूठ है, बिकॉज एलिमेंट सेट के अंदर सेट है ना, तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन सेट कंटेनिंग 0 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। 0 सेट के अंदर है, हाँ, तो सेट कंटेनिंग 0 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे कि 1, डेफिनेटली 1 इज, टेल मी इज इट ट्रू और फॉल्स? ये तो सरासर झूठ है, सबको मालूम है, बिकॉज 1 इज पार्ट ऑफ द, 1 is element of set B. So this is false. 1 is element of, this is true. तो ये बात क्लियर हो गई। अब इफ यू नो राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले स्टार्ट विद द नल सेट, देन सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ये भी इसका एलिमेंट है, तो सेट कंटेनिंग 0 को भी एलिमेंट के अंदर लिखा जाएगा। देन आफ्टर दैट the set itself. तो how many sets are there? How many subsets are there? 4, ठीक है, 1 2 3 4, अरे 5 कैसे? 4 सबसेट हो गए। अब सेट, सब मान लो किसी सेट का कार्डिनल नंबर n है, तो नंबर ऑफ सबसेट हैविंग नो एलिमेंट मतलब नल सेट तो एक ही बनेगा। सो दिस इज चैप्टर कॉल्ड बायनॉमियल। बायनॉमियल विल स्टडी कि हाउ डू वी सेलेक्ट, यू नो, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट, उनमें से तुम एक ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करोगे, 2 को कैसे करोगे, 3 को सेलेक्ट कितने वेज से कर सकते हो, 4 को कितने वेज से कर सकते हो। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सपोज देयर आर n ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू सेलेक्ट r ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, को बोलते हैं NCR। NCR, कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। तो अगर सपोज मैंने n ऑब्जेक्ट में से 0 सेलेक्ट किया, आई राइट NC0, और मतलब प्लस साइन, अगर मैं n में से 1 सेलेक्ट किया NC1 होगा। जैसे कि मैंने एक ही एलिमेंट वाला लिया, एक ही एलिमेंट वाला लिया, फिर n एलिमेंट्स मैंने 2 सेलेक्ट किए एंड टिल NCN, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यू लर्न लेटर, इसका आंसर आता है 2n। सो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होगा 2n। ये कैसे आता है ये हम बाद में सीखेंगे, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, दिमाग पे जोर मत डालना ज्यादा, बट सिंपली ये लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। बोलो। वन टू है, मैंने नंबर ऑफ सबसेट 4 लिखा है, नंबर ऑफ सबसेट 4 लिखा है। जैसे कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है ए का? 3। ये 8 क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ सबसेट्स लिखा है, वो यहां से आता है। तो अब तुम ये फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, और ये कैसे डेराइव हुआ? यहां से डेराइव हुआ, विच यू विल सी लेटर। So number of subsets of set A is always 2n when it's cardinal number of set A. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। You need to write number of subsets। मैं 2 सेट्स लिख रहा हूं। सेट X, it has 1 2 3 4 4 एलिमेंट, कितने सबसेट्स हैं और लिस्ट देम डाउन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज the set Y which contains 0 5 and a set containing 5, write all the subset of this। आराम से, without making silly mistake, take your time, आंसर करो। First identify cardinal number, then you know the formula 2n, उससे तुम्हें total number of सबसेट मिल जाएंगे, and then you list them down also। जब लिस्ट करोगे सबसे पहले नल सेट से स्टार्ट करो,
फिर वन सिंगल एलिमेंट, फिर टू एलिमेंट्स, फिर थ्री एलिमेंट्स एंड लाइक दैट. नो हरी, टेक योर ओन टाइम. कल खत्म हो रहे हैं. खाना. हम्म. वो नहीं लिखा तुमने, सेट इट सेल्फ ही तो आएगा. तो तुम्हारे 16 कैसे हुए? अच्छा, तुमने काउंट नहीं किए. हाँ. नहीं, दे कांट बी ऐसा. हाँ, दिल बी द सेम बिकॉज रेपिटेशन एंड द ऑर्डर इज इमेटीरियल. 1 4 एंड 4 1 इज द सेम. So done. डन हो गया. Yes, sir. ऑल राइट. Yes. एक और कर लो, बोनस क्वेश्चन. तीन एलिमेंट है ना, 1 2 3, 8 बनने चाहिए. हैं 8 तुम्हारे? हाँ तो 1 1 2 3 4 5 6. हाँ. 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 हाँ, वो एलिमेंट है ना वो. फर्स्ट तो सभी का हो गया. फर्स्ट इजी है, मैं भी कर सकता हूँ, इतना इजी है ये. 16. ठीक है. स्टार्ट विद नल सेट. 5 आ गया. फिर एग्जैक्टली वन एलिमेंट. 1 2 3 एंड 4. उसके बाद टू एलिमेंट. तो वन को फिक्स कर लो, रैंडमली मत करो वरना बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा. वन फिक्स कर देते हैं. वन के साथ टू, वन के साथ थ्री, वन के साथ फोर. राइट. फिर वन को हटा दो, फिर टू को सेलेक्ट कर लिया. अब टू के साथ वन लिखने का पॉइंट नहीं, बिकॉज वन टू एंड टू वन इज द सेम. तो टू के साथ थ्री और टू के साथ फोर. फिर टू के बाद थ्री को फिक्स कर दो. थ्री इंटू टू कोई फायदा नहीं है, थ्री को आगे बढ़ाओ. थ्री विद फोर. So there'll be six sets which have exactly two elements. Again, the chapter combination will study that if I select two objects out of four, उसका आंसर होता है सिक्स. 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली अगर चार में से तीन सेलेक्ट करने हैं तो उसका आंसर होता है 4. अब नेक्स्ट में तुम तीन एलिमेंट्स वाले लोगे, वो चार बनेंगे. तो यू फिक्स 1 and 2 दिस टाइम. 1 and 2 फिक्स कर दिया. तो 1 2 का 3, 1 2 का 4. दो और बचे हैं अभी. ठीक है. फिर क्या करोगे? 1 3 विथ 4
और फिर और क्या होगा? 1 3 4 हो गया, और एक और बचा है, कुछ होगा? हाँ, नहीं नहीं, अभी कितने हो गए तुम्हारे टोटल? फोर सी। सर 4 1 2 मैंने ये 4C3 नहीं था ना ये? हाँ, 4 में से 3 था ना? हाँ, कौन सा? 1 2 4 1 2। 4 1 2 1 2 4 1 2 4 तो लिख दिया मैंने। 4 में से 3 सेलेक्ट करने थे ना? यस, 2 3 4, एंड देन फाइनली 1 2 3 4. So there are 16 subsets of 1. इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 3. तो 2 raised to power 3 का मतलब 8 आएंगे इसके सबसेट्स। सिया लिखना, बोर्ड पे आ जाओ। हो गया सारे? हाँ, 3 ही है। इसमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ना तुम्हें। ठीक है। ये एक ही माना जाएगा, 1 एलिमेंट, तो डबल हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो तुम साई लिख रही हो, फाई है ये, फाई पूरा गोला एंड कट। साई वो केमिस्ट्री में बड़ा श्रोडिंगर इक्वेशन, दैट इज साई, आधा होता है वो। अथर्व हो गए सारे? Sir, not the last one. आदित्य? The last one. Yeah. ठीक है, ओके, हो गया। सेट इटसेल्फ लिखा तुमने? कहाँ लिखा है? मिस कर दिया ना, ये मिस किया तुमने शायद। 3 3 6 7, अब पूरा सेट लिखना है तुम्हें। दिव्या सारे कर लिए? यस सर। जैस हो गए? तो कर लिया तो फिर आई रियलाइज यू मेड अ मिस्टेक। ओके, ठीक है, तुम्हारा लास्ट हो गया, आ जाओ। ये वाला करो। नाइन्थ का फोर्थ पार्ट एंड 10th का फिफ्थ पार्ट करो। 9 का फोर्थ एंड 10th का फिफ्थ। बीच में कॉमा लगाओ, 2 एलिमेंट्स के। सर डन 9th का 4th एंड 10th का 5th। नाइन्थ का 4th एंड 10th का फिफ्थ करना था। यस सर डन। हो गया। तो नाइन्थ के फिफ्थ
फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ है फिफ्थ, फोर्थ, fourth, कितने सबसेट बन रहे हैं? फिर 2, कौन कौन से? फिर 5 एंड ब्रैकेट में 5. फाउल हो गया ये, वही वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये फाउल हो गया है। नाइन्थ का फोर्थ पार्ट था, उसमें जो मैं सेट जो गिवन था वो तो बेचारा नल सेट था, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसका कार्डिनल नंबर कितना है नल सेट का? 0 है। तो कितने सबसेट बनेंगे? तो तुम्हारा एक जादू से दूसरा कहाँ से आ गया? ने वो ब्रैकेट में डाल दिया. हाँ वो नहीं, वो फाउल हो गया ना, वो नहीं होगा। और टेंथ का फिफ्थ पार्ट क्या था? वो नल सेट नहीं कहलाएगा ना फिर वो। नहीं, क्या गिवन है तुम्हें, सेट क्या गिवन है? हाँ, राइट, सो दिस इज नॉट ए नल सेट, इट इज ए सिंगलटन विच हैज ओनली वन एलिमेंट। मतलब इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है? 1। तो 2 raised to power 1 मतलब 2। जब भी कंफ्यूजन हो, कार्डिनल नंबर लिख लो उस पर, ठीक है? और उसके बाद उसकी पार करके नंबर ऑफ सबसेट कर लो। तो अब कैसे करोगे? नल सेट एंड द सेट कंटेनिंग द सेट इटसेल्फ, है ना? नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ। तो ये आंसर आ गया। ठीक है अथर्व, सबको समझ में आ गया? आदित्य, लावण्या, तुमने तो पहले ही कर लिया था। Yes, sir, done. ऑल राइट, नेक्स्ट लिखो पावर सेट ऑफ ए सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट। Power set of a set is set of all the subsets. Power set of a set is the set of all subsets of a given set. दोबारा बोल रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। कहने का मतलब, अगर किसी सेट का हमें पावर सेट निकालना है तो उनके सारे सबसेट लिखो और उनको सेट में डाल दो, ठीक है? आगे लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए। मतलब पी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? पावर सेट ऑफ ए, ऑफ सेट ए। So if all the subsets of a given set are written in a set, it will be called power set of the set. जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन में ये वाला सेट था x, तो x का पावर सेट कैसे बनेगा? सारे सेट लिख लो और चुपके से उनको सेट के अंदर डाल दो। तो दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ x, राइट? y का पावर सेट क्या होगा? y के सारे सेट लिखे, सबसेट लिखे, उनको सेट में डाल दिया। So this would be power set of y. और दिस इज पावर सेट ऑफ z। ये बात समझ में आ गई? So this is how you write power set of a set. अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ x, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। 16. 16. इसमें कितने सेट्स हैं? 16, ठीक है? इन जनरल किसी भी पावर सेट का कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए? इट विल बी 2 raised to power n ऑफ a। दिस अ मास्टर ब्लास्टर, लिख लेना ये। n of pa is always 2 raised to power na। जैसे कि y के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। इसमें भी 8 थे। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, बताना इस क्वेश्चन में।
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। कौन बताएगा? लावण्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। it'll be this वही सेम होगा ना? क्यों भाई? इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? 16 16। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? टू 2 रेज टू पावर पावर n। 16। अच्छा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स of power set of x will be 2 raised to power 16 Okay. because set x contains set x में कितने एलिमेंट है? 4। उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है? 16। तो 16 के कितने सबसेट बनेंगे? 2 raised to power 16। तो दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ p ऑफ a, 2 raised to power 2 raised to power n of a। ये एंट्रेंस में आते हैं क्वेश्चंस। भाई बात सही समझ आ गई? एक क्वेश्चन लिखो। सपोज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ number of subsets of power set of set A, number of subsets of power set of set A are 256 are 256। find cardinal number of set A, find cardinal number of set A and cardinal number of power set of A, find cardinal number of set A and cardinal number of power set of A। क्या नहीं आया? कौन सा वाला पार्ट बताओ? पावर सेट जो हमने सबसेट बनाए थे ना, उसी को ब्रैकेट डाल दिया। 1 कैसे हो जाएगा? ये एक सेट है, ये सारे अलग अलग हैं, तो उनको 1 कैसे मान लोगे तुम? तो ब्रैकेट में इसमें डाल रखा है, तो ये 1 ही है हुआ। इसका कार्ड नंबर 1 का है, 4 है इसका। तो अलग अलग सेट्स है ना, मतलब पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट्स होते हैं। पावर सेट के अंदर के एलिमेंट भी सारे के सारे सेट हैं। तो हर सेट एक एलिमेंट काउंट होगा। उसके बाद तो फिर फॉर्मूला दे दिया मैंने, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। जैसे ये पावर सेट ऑफ एक्स था ना, इसका कार्डिनल नंबर कितना? 16 है। 1 2 3 4 5 6 7, 16 है ये। तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। ए कितना है तुम्हारा? देखो 4। ए को 4 डाल दो, 2 रेज़ टू पावर 16 आ गया आंसर। एन ऑफ ए कितना है? 4। So the cardinal number of P of power set of A would be 16. और 2 चीजें पूछी है मैंने। वो 4 होगा।
ठीक है, वेट करते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। आदित्य, व्हाट डू यू से? So, can you repeat the question? क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो मैंने बताया था ना। So, what do I say about what? आई मीन जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है? So, कार्ड इसका so कार्डिनल नंबर मेरा 16 आया. किसका? सेट ए का? Yes sir. और पावर सेट का कितना आ रहा है? So पावर सेट का so नंबर ऑफ सबसेट्स 256 है, तो सर पावर सेट कैलकुलेट कर रहा हूँ. दिव्या, व्हाट डू यू से? Sir, I didn't quite get the question. अरे क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, मैं भी आंसर कर लूंगा, इतना सिंपल है ये। मैंने दिया था नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर। सब बोर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है, चीटिंग कर सकते हो। आई हैव गिवन यू व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ है, यही गिवन था ना। वो कितना दे रखा था? 256। अभी देखते हैं। 256 मैंने तुम्हें कहा था पहले भी, 2 रेज टू पावर 10 याद कर लो, ये नहीं तो लिख लो अब। 2 रेज टू पावर 10 होता है 1024। बार बार काम आएगा ये। दोनों साइड को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू 512। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 रेज टू पावर 8 कितना हो जाएगा? 256। तो ये होगा 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n ऑफ a। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब सेम बेस में पावर इक्वेट इक्वेट होती है, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 रेज टू पावर n ऑफ a। इज इट Sir, I've करेक्ट? got the answer. हाँ, क्या आ रहा है? Sir, cardinal number of A is 4 and cardinal number of power of A is 16. ओके, तो 256 2 रेज टू पावर 8, ये तो समझ में आ गया ना? ये गलत हो रहा है। 2 रेज टू पावर 10 1024 ही होता है ना, तो 2 से डिवाइड किया। हाँ ठीक है। तो अब ए की वैल्यू कितनी होगी? 8 कितना होता है? 3। तो 2 रेज टू पावर n ऑफ a। अब n कितना आ गया? 3। तुम्हारा तो 3 आ रहा है भाई। आई एम गेटिंग कार्डिनल नंबर इज 3। ए का कार्डिनल नंबर 3 है। 8 हो गया, हाँ। जैस तुमने क्या किया? 4 कैसे आ रहा है? 4 और 16 नहीं आएगा? Yeah, 8 is equals to 2 anyway. हाँ, अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर 3 है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? उसके सबसेट्स बनेंगे 2 रेज टू पावर n ऑफ a विच इज 2 रेज टू पावर 3 विच इज 8। मतलब पावर सेट में इतने एलिमेंट आएंगे उसके, 8 एलिमेंट आएंगे। तो किसी सेट में अगर 8 एलिमेंट हैं तो कितने उसके वो बनेंगे? 2 रेज टू पावर 8। 2 रेज टू पावर n होता है ना, तो इसके 2 रेज टू पावर 8 बन जाएंगे सब सेट। 2 रेज टू पावर 8 होता है 256। तो हमने रिवर्स कर दिया। तो वी स्टार्टेड विद दिस फॉर्मूला जो मैंने गिवन था, ये मैंने किया था ना फॉर्मूला। एक बार रिवाइज कर लो आज का, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 ईयर की क्लास।
ठीक है, सबको समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. तो पावर सेट में क्या करना है, जो हमने सबसेट बनाए थे उनको सेट में लिख दो। सो दैट इज पावर सेट। तो पावर सेट भी एक सेट ही है, और पावर सेट के सारे एलिमेंट सेट्स होंगे। सारे के सारे सब एलिमेंट्स सेट्स होंगे। उनके भी सबसेट बना सकते हो। उनके जो सबसेट बनाओगे उसका ये फॉर्मूला 2 raised to power n है। और यू कैन से 2 raised to power कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। एक ही बात है। सो दैट्स इट। नाउ वी हैव ए क्लास ऑन सैटरडे। हाँ, फिजिक्स तो कल है ही वैसे। सो एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. बाय। Thank you.